Page number 31, activity number 7. I have asked you to do this activity as homework. Now we are going to check the answers. And those who have not done this activity, they can do it right now. Try this common type of activity. Choose a correct option. Okay, the first one. Parents need to take care of their children. What is the correct phrasal verb for that? Look after. Look after. Yeah. Look Look after. after. Yes, in the blank you can fill the words look after. Next one. My son says he will stop telling lies. Give up. Give up. He will Give up. give up telling lies. See that all the letters are small. I will call the shop to dash the price of the product. Find out the Find out. Send out Find the. out. Gigi, find out. You must return the library books. Find out. Give back. You must give back the library books after reading. Give back is the answer. Now next is the again a group activity that we will not do, but we can read at least what it is given. Now you try to be the teacher. Choose one of the phrasal verbs from your list in the activity on phrasal verbs and write a fill in the blank question like the one above. What you have to do, as they have given us 4 examples, in the same way 1 example you have to make of your own. Okay, here if you're having your 6th standard, if you're having your this 4th standard grammar textbook or 4th standard grammar textbook, there are also many phrasal verbs were given. उनको sentences हैं ऐसे idioms वाले जिसमें phrasal verbs आते हैं, तो आप कुछ वैसे वाले sentences आप 1-2 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? So you have to write your own question based on these questions. जैसे उन्होंने question बनाए हैं वैसे 1-2 आपके खुद के बना के लिखने हैं यहाँ पर. Give your fill in the blank to a classmate to try out. This we are not going to do. This is a group activity. You cannot give your answer, the question to the classmate. So we will omit this part. Yes. Rest, you can find 1 or 2 sentences which are related to these sentences. आप 1-2 sentences इनके बेस पे और लिख सकते हो, ठीक है? Now let us move on to page number 33. Activity number 9. Work with a partner or a group to create an advertisement. Again, it is a group activity, but we will do it individually. हम हमारे लेवल पे अकेले करेंगे ये एक्टिविटी, ठीक है? You are a team of advertisers for a big soft drink company. Now you have to imagine that you are a team of big soft drink company, soft drink company. तो एक बड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के आप टीम में लोग हो. You want to make a new drink to sell to housewives. अब आप देखते हो कि हाउसवाइफ्स घर का काम कर करके बहुत थक जाती हैं. इवन उनको एक्सर्शन भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किचन का भी काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना. इवन कुछ लेडीज़ काम भी करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, घर का भी देखती हैं. तो हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. दे हैव टू वर्क नाइट एंड डे फॉर देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, फॉर देयर हाउस होल्ड ऑल्सो. घर भी क्लीन करना है, घर का भी देखना है एंड उनको बाहर का भी देखना होता है, ठीक है? बच्चे भी संभालने होते हैं. तो कुछ ऐसा हम ड्रिंक बना सकते हैं जो उनको उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो उनको रिवाइटलाइज करे, री एनर्जाइज करे, उनके जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका वो लेवल बढ़ाएं, ठीक है? और काफ़ी सारी लेडीज़ को आप देखोगे कि ब्लड उनको कम होता है, हेमोग्राम जो होता है उनका, हेमोग्लोबिन उनका बहुत कम होता है, लेवल बहुत कम होता है. तो कुछ ऐसे ड्रिंक बनाएं जिससे ब्लड इम्प्रूव हो, है ना? तो वैसे आपको कुछ सोचना है. डिसाइड टुगेदर व्हाट द ड्रिंक विल बी लाइक एंड हाउ यू विल एडवर्टाइज इट. तो आपको ग्रुप बनाना है, मीन्स आपको अभी यहाँ पर तो अकेले ही सोचना है कि आप किस तरह से वो ड्रिंक बनाओगे, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे डालोगे, कौन सा फ्लेवर आप बनाओगे. सम क्वालिटीज़ दैट यू माइट कंसिडर. तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप देख सकते हो, जैसे उसका टेस्ट कैसा होगा,
प्राइस कितनी होगी, जैसे सारे नॉमिनल चार्ज में हो कि सारी लेडीज़ ले पाएँ, इवन पुअर लेडीज़ भी ले पाएँ, मिडिल क्लास भी ले पाएँ, रिच क्लास भी ले पाएँ, तो कुछ ऐसे ड्रिंक हमें हमें बनाना है। हेल्थ बेनिफिट्स हो उससे, कि उसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। डाइट भी देखना है कि वो मीन्स वो डाइट कोक हो, ठीक है। कलर उसका देखना है, कैफीन है कि नहीं, कार्बोनेशन है कि नहीं, नॉन कार्बोनेशन, कार्बोनेशन नॉन कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब क्या, आप जब भी पेप्सी का बॉटल लेते हो तो उसमें सोडा वो बबल्स नहीं आते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोनेशन होता है। तो ये वाला जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक होगा वो कार्बोनेटेड होगा या नॉन कार्बोनेटेड होगा, मीन्स उसमें से वो गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि ये नॉर्मल वाला फ्रूट जूस जैसे होता है फ्रूट जूस होगा। टाइप ऑफ बॉटल, आप कैन यूज़ करोगे कि प्लास्टिक बॉटल लेंगे, कि आप टिन यूज़ करोगे, और एनी अदर क्वालिटी दैट यू एंड योर पार्टनर थिंक ऑफ। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाउस वाइफ्स, वाई वुड हाउस वाइफ्स बाई योर ड्रिंक, हाउस वाइफ्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है, और हाउस वाइफ्स आपका ड्रिंक क्यों बाय करें, आपके ड्रिंक में ऐसा क्या खास बात है कि आपका वो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक लें। What will you say in your ad to convince housewives to buy your drink? आप ऐसे क्या उसमें एडवर्टीजमेंट में आप क्या कौन से ऐसे स्लोगन्स या कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आपके कस्टमर को, हाउस वाइफ्स को कन्विंस करें आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। Discuss these questions together, then agree on a name and slogan for your drink. तो आपको ये क्वेश्चंस खुद बनाने हैं, स्लोगन भी खुद बनाना है। आपको नाम प्रोडक्ट का, जैसे थम्स अप है, कोको कोला है, वैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक का या सॉफ्ट ड्रिंक का नाम क्या होगा। Draw an advertisement here, then make a short presentation to the class where you try to sell your drink to the other classmates. Now what you have to do here, advertisement आपको बनाना है। एडवर्टीजमेंट आपको बनाने आता है, ऊपर से आपको पहले प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है और फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स। नहीं बनाने आता है आपको, ये देखिए एडवर्टीजमेंट ही है, अमूल का आपने एडवर्टीजमेंट देखा है ना, ये देखिए, ये जो अमूल का दिया है उन्होंने, दिस इज एडवर्टीजमेंट ओनली। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो, आपके प्रोडक्ट का नाम आ जाए आपके, हाँ जी ऐसे हम बना सकते हैं ना, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं, किसने मैन्युफैक्चर ma'am. किया है, आपकी कंपनी बना सकते हो आप, है ना। फिर आपके पिक्चर एडवर्टीजमेंट में उस बॉटल का पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। कैन यू डू दैट। I will try. हाँ जी, जैसे आप पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हो वैसे ही आपका एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है, जस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपका स्लोगन भी आ जाता है और फिर वो हेल्थ बेनिफिट्स भी आप लिखोगे या इंग्रेडिएंट्स आपको लिखोगे, फिल्ड विद पिस्ता, बादाम, काजू, है ना, कुछ ऐसे होगा तो फिर वो हाईलाइट करता है, या जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, बटर स्कॉच फ्लेवर है, तो वो आप नीचे से ऐड कर सकते हो। गॉट इट। हाँ, तो ये हम ट्राई करेंगे। विल यू ट्राई टू मेक एन एडवर्टीजमेंट। Yes, ma'am. ठीक है। Yeah, ma'am. एक्टिविटी नंबर 10, सो हियर मीन्स यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट ही बनानी है एक। एक्टिविटी नंबर 10, शेयर योर एड फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक विद द क्लास, लिसन टू द एड्स ऑफ अदर क्लासमेट्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रिटेंड दैट योर हाउस वाइफ, वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू। अब बॉक्स में आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप हाउस वाइफ हो, सिर्फ इमेजिन करना है कि आप हाउस वाइफ हो, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, खाने के लिए क्या ज़रूरी है, पीने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आपको आपका पॉइंट्स वहाँ पर लिख सकते हो। दैट बीइंग द हाउस वाइफ वी हैव टू वर्क द डे एंड नाइट, यस वी हैव टू लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन, इवन आई गो फॉर वर्क, इससे आप ऐड कर सकती हो, इवन आई हैव टू लुक आफ्टर माई होम, सो आई नीड मच ऑफ द एनर्जी filled, I need much of the energy, so I'm expecting the energy filled drink for me, ऐसे, ठीक है। what is important for you, ठीक है। we being housewives require lots of
this vitamins, minerals. ऐसे आप कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पर पैराग्राफ में, आपको लिख लेना है, ठीक है? आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है. Discuss the importance of the following qualities in a soft drink and rank them in order of their importance. First being the most important and 10 being the last importance. Ranking करनी है. जैसे क्लास में फर्स्ट रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है, थर्ड रैंक आता है ना? वैसे आपके हिसाब से फर्स्ट रैंक किसको देना चाहिए? टेस्ट को देना चाहिए, Taste प्राइस को. को देना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स को देना चाहिए, डाइट को देना चाहिए. Ma'am, I think it would be taste because मैम अगर भले उसमें हेल्थ बेनिफिट्स है लेकिन अगर वो टेस्ट टेस्टी है, नहीं जी है जी तो कोई जी जी जी. उसे आपके लेने नहीं हिसाब से वाला. हैं, किसी को ऐसे लगेगा कि मुझे प्राइस फर्स्ट रखना चाहिए क्योंकि अगर 10 रुपए का ड्रिंक है या 15 रुपए का ड्रिंक है तो हर एक कोई खरीदेगा. अगर मेरा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का है तो कोई खरीदेगा नहीं, मीन्स कम लोग खरीदेंगे. समझ रही हो ना? समझ रही? तो किसी के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाएगा आपका टेस्ट, या तो फिर सेकंड बोलेंगे कि उसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी होनी चाहिए, सेकंड किसी को ऐसे लगेगा, थर्ड लगेगा कि टेस्ट होना चाहिए. तो डिपेंडिंग ऑन यू आप रैंकिंग कर दीजिएगा, ठीक है? मैम हाँ बोलिए. मैम हम ऐड मतलब वो ऐड बनाए किसमें? जी आप आपके फेसबुक में बनाओगे ऐड, यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास. तो जब हमारे पास टेक्स्ट बुक में जगह नहीं होती है तो हम फेसबुक में बनाते हैं, ठीक है? ओके ठीक है, मैम. हाँ जी. आपको चाहिए तो आप एडवर्टीजमेंट्स आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में भी देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट का आता है, जैसे अमूल दूध का आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो वाला भी ऐड आता है. कोई मोबाइल सेल करता है तो मोबाइल का भी, स्मार्टफोन्स का कैसे वो फ़ोटो लगाते हैं, फिर उसके फीचर्स लिखते हैं. इवन कोई मोटर बाइक सेल करता है तो मोटर बाइक का पिक्चर आता है, फिर उसके फीचर्स लिखे जाते हैं, फिर नीचे वो भी लिखते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देते हैं या लोन पे हो सकता है. वो सब एडवर्टीजमेंट में आता है, वैसे आप बना दीजिए, ठीक है? यू कैन रिफर टू द न्यूज़पेपर्स, टू द मैगजीन्स, इवन यू कैन गो टू द इंटरनेट. आप सिर्फ देखिए, आइडिया लीजिए और खुद का बनाइए एडवर्टीजमेंट. गॉट इट? एंड इन द नेक्स्ट पीरियड यू विल ट्राई टू शेयर योर एडवर्टीजमेंट विथ मी. आपकी नोटबुक में से Yes, एडवर्टीजमेंट का ma'am. पिक्चर निकाल के मुझे दिखाइए. Okay, ma'am. Use one of the ads presented by another group of classmates to answer the following questions. किसका आवाज था? ये कौन है? दो स्माइलीज वाला नाम नहीं है यहाँ पर. कौन सा बच्चा है ये? सरिता. परिता. आपके दो स्माइलीज हैं क्या? आपके घर से आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है. यहाँ पर देखिए, did the advertiser understand what is important to you as a housewife? Would you and your partner buy the drink sold by your classmates? Why or why not? ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं. आप आपके हिसाब से ये आंसर्स कर दीजिएगा, ठीक है? आपको लगता है कि आपकी Yes, ma'am. एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव हैं और हाउसवाइफ्स खरीदेंगी, आपकी क्या ओपिनियन है वो ओपिनियन आपको लिखना है, ठीक है? आया Yes, समझ में कि नहीं आया? आया ma'am. जी जी जी, ठीक ठीक. आ गया मैम. So unit 3 we are done. Now let us move Yes. on to unit number 4. You can mention today's date on the top of the page. Unit number 4, exploring poetry. We have seen how to make advertisements. Advertisements कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया. नेक्स्ट पीरियड में आप कुछ सैम्पल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट लेके आइएगा, हम देखेंगे. किसी के मैगजीन या न्यूज़पेपर में कोई एड्स होंगी ना, तो आप वो कटआउट्स लेके रखिएगा और नेक्स्ट पीरियड में आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? क्या मैम? रीड अलाउड एंड एंजॉय द पोएम लाइव. तो आपको पहले तो ये रीड अलाउड मीन्स जोर से बोलनी है पोएम. ओके, फर्स्ट आई विल रीड, देन वी विल रीड अलाउड. What is life? Life is a tree that grows well with love and care. Life is a kite ready to fly in the air. Life is music if you know the notes to play.
Life is a road with twists and turns on its way. What is life? Life is what you make it your way. By Miss S. Esther Samuel. तो एस्थर सैमुअल जी ने ये लिखी हैं। क्या हो रहा है परिता? अच्छा, लाइफ मतलब जिंदगी। हमारी जिंदगी कैसी है मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर हम रीड कर लेते हैं। What is life? Life is a tree that grows well with love and care. Means जैसे एक ट्री को केयर करना होता है, पहले वो छोटा सा सीड होता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसको खाद देनी पड़ती है, तो फिर वो ट्री ग्रीन होता है, बड़ा होता है, ग्रीन होता है. Then it forms with stems, roots are there, flowers are there, leaves are there, fruits are there. When it will come, when you are going to care, when you are going to take care of the tree, at that time you will receive the fruits. But if you will not take care of the tree, you will not get any fruits and flowers and leaves. Got it? It will get dried up and it will get died. तो लव एंड केयर बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लव रिसीव होता है, आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, यू रिसीव केयर फ्रॉम देम, यू रिसीव दैट इंटिमेसी and that protection from them, that security feeling from them, right? And then life, even not only from your family but from your relatives also. Your relatives also love and care for you, your friends also, right? So many people are there who will make your life, they will make your life beautiful, okay, beautiful to live. लाइफ इज़ अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर. हमारी ज़िंदगी कैसे एक पतंग की तरह है कि उड़ने के लिए तैयार है. मीन्स वॉट, आपको जो भी एक्टिविटीज़, मीन्स आप बहुत ही एक्साइटेड रहते हो, आप हमेशा कैसे ईगर होते हो, कुछ जानने के लिए ईगर होते हो, घूमने के लिए आप ईगर होते हो, है ना? तो हमें क्या करना, हमें उड़ना है, हमें उड़ना पसंद है, मीन्स घूमना पसंद है, हमें दुनिया देखना पसंद है, हमें और नॉलेज कलेक्ट करना पसंद है कि क्या चल रहा है फिल्म वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, हमें वो जानना है. मीन्स वी आर इनक्विजिटिव, वी आर ईगर टू नो ईच एंड एवरीथिंग, वी वांट टू फ्लाई एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. लाइफ इज़ म्यूज़िक. हमारी लाइफ किसकी तरह है? म्यूज़िक की तरह है. इफ़ यू नो द नोट्स टू प्ले, अगर आपको सही तरह से नोट्स बजानी आती, नोट्स मतलब क्या, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब भी आप बजाते हो, जैसे वायलिन है या गिटार है या कीबोर्ड है, जब आप बजाते हो तो उसकी नोट्स आपको होनी चाहिए कि कौन से बटन का कौन सा साउंड निकलता है, दैट आर द नोट्स, राइट? आप ये बटन दबाओगे तो उसमें सा का साउंड आएगा, उसमें से रे का साउंड आएगा, दोज आर द नोट्स, राइट? इफ़ यू नो हाउ टू प्ले देन योर लाइफ विल बी वेल. अगर आपको ज़िंदगी चलानी आती है तो अच्छे से चलेगी, लेकिन आप आपकी ज़िंदगी में रोते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, तो फिर इट इज़ ऑफ नो यूज़. एवरी टाइम ऑफ क्राइंग एंड एवरी टाइम ऑफ मर्मरिंग, कंप्लेनिंग, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. कि आप हमेशा किसी न किसी में फॉल्ट ढूंढते रहें कि इसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे. ठीक है? लाइफ इज़ अ रोड विथ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. तो हमारी ज़िंदगी कैसी है? एक हमारे रास्ते की तरह है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. आपको ट्रैवल करना है इस लाइफ में. देयर मे बी माउंटेन्स ऑल्सो कमिंग टू योर लाइफ. कभी पहाड़ आएंगे, कभी पत्थर आएंगे, लेकिन ये सब पार करके आपको आगे बढ़ना है. ट्विस्ट होंगी, टर्न्स होंगी, सीधा सीधा रास्ता नहीं होगा, बहुत ही टर्निंग वाला रास्ता है, घुमा घुमा के हमें लेके जाता है. मीन्स सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती हैं, कभी खुशी कभी गम होती हैं. ठीक है? वॉट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट योर वे. ज़िंदगी हमें किस तरह से जीनी है, किस तरह से बनानी है, ये हमारे हाथों में है. कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपको इस तरह से जीना है, इस तरह से जीना है. आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ एंड आपको आपका ब्रेन यूज़ करके आपकी लाइफ जीनी है. ठीक है? अंडरस्टूड द पोएम? Yes, ma'am. सिंपल? Yes, ma'am. सिंपल? Yes, ma'am. जी. Now who is going to read the poem? मैम आए. हाँ बच्चा. Yes, ma'am. मैम आए. प्रियांशी आप रीड कर लीजिए बच्चा. यस मैम.
Life. What is life? Life is a tree that grows well with love and care. Life is a kite ready to fly in the air. Life is music if you know the notes to play. Life is a road with twists and turns on its way. What is life? Life is what you make it your way. By By Miss Estelle Samuel. एस्थर सैमुअल, ठीक है जी। Estelle Samuel. ओके गुड। नाउ लेट अस टर्न टू एक्टिविटी नंबर 2। This is your home assignment. Visit a park and identify birds, insects, trees, and flowers. Note the details below. Now, visit the park. अब मुझे नहीं लगता पार्क्स कुछ चालू होंगे, पर आप आपके हिसाब से अपने पार्क्स में जब आप गार्डन जाते हो या गए थे पहले, तो आपने क्या कौन से बर्ड्स देखे थे, कौन से इंसेक्ट्स देखे थे, ट्रीज कौन से थे और फ्लावर्स उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। या तो आपके समझ के हिसाब से आपको जो जो आपको फ्लावर्स आते हैं, जो बर्ड्स के नाम आते हैं, वो आप लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन लॉजिकली लिखना जो पार्क्स में मिलते हैं, ऐसे नहीं आप बर्ड का नाम ऑस्ट्रिच लिख दो जो पार्क में मिलता ही नहीं है, तो वैसा नहीं लिखना आप, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 3। ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, दीज टू आर द इंसेक्ट्स। आपने ग्रास हॉपर देखिए कैसे लगता है। ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का होता है, वो आप Yes. देखते हैं कि ग्रास में ही होता है मोस्टली, क्योंकि उसको ग्रास में ग्रीनरी में रहना बहुत पसंद है। क्रिकेट देखिए ब्लैक कलर का, कैसे क्रिकेट है, क्रिकेट भी इट इज़ आज सिमिलर एज ग्रास हॉपर ओनली, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम सेम जैसे ही लगते हैं, ठीक है। बट देन ऑल्सो इन द लास्ट वी विल शेयर द पिक्चर ऑफ ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट थ्रू मैम दिस मैं करूँ? पोएम। हाँ जी, मैं पहले इतना रीड कर लूँ। Through this poem on Okay. nature, in it, the grasshopper and cricket act as symbols suggesting life. तो ये कैरेक्टर्स हैं या सिंबल्स हैं जो हमें जीवन किस तरह से बिताना है या जीवन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बता रहे हैं। Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. मीन्स इस पोएम के थ्रू हमें बताया है कि हमारे जीवन में कभी बाहर आता है, कभी पतझड़ आती है, मीन्स समटाइम्स स्प्रिंग इज देयर, ऑटम इज ऑल्सो देयर, रेनी सीजन is also there, summer is also there, winter is also there, right? So many seasons we have to travel, we have to cross through it, and we are learning every now and then from the seasons also, from the people around us. एंड ये जो पोएम है हमें ये समझाती है कि हमारी जो लाइफ है ये नेवर एंडिंग सॉन्ग, कि हमें डेथ आने तक ये जीनी है लाइफ। तो इसमें डिजीज़ भी आती हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस भी आती हैं, इसमें फिर कुछ इंसिडेंट्स भी होती हैं, कुछ इवेंट्स होती हैं, तो सब हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी। The poetry of earth is never dead, means the poet wants to tell us कि जो ज़मीन का जो अर्थ का जो पोइट्री है, मीन्स जो अर्थ में जो काम होता है, जैसे ट्रीज ग्रो होती हैं, बर्ड्स सिंग करती हैं, सन जैसे राइज होता है, सेट होता है, सब अपने टाइम से अपना काम करते हैं, सब अपना जीवन जी रहे हैं। तो दिस इज़ नेवर एंडिंग, ये तो चलता ही रहेगा, जब तक ये दुनिया नष्ट ना हो जाए तब तक तो ये चलता ही रहेगा। इस नेवर डेड मतलब क्या, कभी मरने नहीं वाली है, जब तक इसका एक अंत ना आ जाए, तो ये चलते ही रहने वाला है। एक इंसेक्ट की डेथ हो गई तो दूसरा इंसेक्ट तो है ही, तीसरा तो है ही, चौथा तो है ही, ठीक है। तो किसी के डेथ से ये रुकने वाली नहीं है। हमारी जो पोइट्री ऑफ अर्थ है या जो अर्थ में जो काम एवरीडे जो होता है, वो कभी रूटीन वर्क उनका एंड नहीं होने वाला। When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. अब ये हमें समर सीजन के लिए बताया गया है। What is happening in the summer time? All the birds are in means they are feeling very hot in the summer time.
या फेंटिंग, फेंटिंग मीन्स व्हाट, उनको चक्कर आती हैं धूप में घूम घूम कर या उड़ कर उनको चक्कर आती हैं। विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, वो एक ट्रीज के यहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं या वहाँ पर बैठना पसंद करते हैं। A voice will run from hedge to hedge about the new mound meal, that is a grasshopper's he takes a leap. और इसी समर टाइम में कुछ ऐसा होता है कि जब पूरा अर्थ काम कर रहा होता है तो एक ही ऐसा इंसेक्ट होता है ग्रास हॉपर, जो उसका काम वहाँ पर स्टार्ट होता है, इसका काम यहाँ पर बंद नहीं होता है। अब इसका क्या काम है देखेंगे। Means a voice will run means he will come from any corner. The grasshopper will come from any corner making certain voice. From hedge to hedge means every corner, कहीं से भी आ जाएगा, इस कोने से या उस कोने से, कहीं से भी कोई भी grasshopper आ जाएगा। About the new mound made means, new mound made means for him now the work is started. ठीक है, उसके लिए कुछ अभी नया एक्टिविटी आया है। अब क्या एक्टिविटी आया है, लेट अस सी। क्योंकि ग्रास हॉपर का ऐसे होता है ना बच्चों कि उनको कुछ काम करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सीजन के लिए, बाद में वो रेस्ट करते हैं। ठीक है, एक उनका सीजन होता है जो वो काम करते हैं, फिर बाकी का वो सीजन होता है जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं। तो नाउ हिज वर्क इज स्टार्टेड। इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन। इन समर लग्जरी मीन्स समर में वो कभी आराम नहीं करते हैं। विथ इज डिलाइट फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन। हाँ, लेकिन काम कर करके अगर थक जाएं तो थोड़ा सा फन तो इन्हें चाहिए। तो थोड़ा सा वो मीन्स अपने फैमिली के साथ मिलेंगे जुलेंगे। जैसे हम आउटिंग के लिए जाते हैं, बोर हो जाते हैं तो ये भी शायद अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं। ठीक है, पर ये आराम कभी नहीं करते हैं। He rests at ease beneath some pleasant weed. काम खत्म हो जाने के बाद he is hiding in the pleasant weed. किसी वीड, किसी जो प्लांट जो मुरझाया हुआ है या जो छोटे छोटे वीड्स होती हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होती हैं, वहाँ पर जाके ये रेस्ट करते हैं। इतना आपको पोएम समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. सो वी विल स्टॉप हियर। द नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो टिल हियर एनी डाउट्स आर देयर? No, ma'am. 1 minute, let me check all the students are there or some ran away. Just a minute.